Good morning, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Sai, I'll be completing amines in 2 lectures. Fine. I've started with amines, no? There is No. one reaction left of acid amine. Okay, one reaction left. Yes, ma'am. Ma'am, Hoffman's bromamide reaction you said Yeah. it to do. Okay. Also known as Hoffman's degradation. Okay. Now this is a reaction of when amide, acid amide. It reacts, it reacts with bromine in presence of alcoholic KOH. Give you a primary amine. Okay, when is organic chemistry going to get over? That is the question asked. 2 lectures now for amines to get over. 2 lectures for biomolecules. 1 lecture for purification of organic compounds, POC. These are the total lectures needed. Polymers I'm not going to do. I've shared the recording, I think. Okay, ma'am. उसमें से पढ़ लेना, कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना. Fine. So now this reaction is used for converting an amide to amine with 1 carbon less. You can see there is a loss of a carbon. Am I right? Yes, ma'am. एक कार्बन का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं. Okay, now you have added alcoholic KOH. Alcoholic KOH is a basic compound. Base के presence में, this will have to give away its acidic hydrogen. The acidic hydrogen will be taken away by the base. Can I say this hydrogen is acidic in nature? Yes, ma'am. तो ये H plus और वो OH minus combine होके water बनेगा. जैसे H plus निकलेगा, N पे चार्ज क्या आएगा? Negative. Positive. नेगेटिव होगा ना, H plus निकलेगा. Yes, ma'am. So you'll get potassium salt of acidamide. Now this negatively charged nitrogen will break the bromine molecule. Bromine molecule will break heterolytic here. Heterolytic मतलब? Br minus. One is Br minus. So what will go with Br plus? Can I say N will go with Br plus? Yes, Yes, ma'am. और Br minus किसके साथ जाएगा? KBr. K. So N will join with Br plus. Now the second hydrogen has become more acidic than the first one. Why it is now more acidic? because Br is present. Can I say this atom is now bonded to 2 electron withdrawing groups? Yes, ma'am. Ketone and Br. So the base will remove the second acidic hydrogen with more ease. ये H plus निकलेगा. What charge will come on nitrogen? Negative. Since nitrogen is negatively charged now, this Br will be removed as Br minus. That Br minus will go with K plus forming
KBr. And you get the formation of any charge on nitrogen. No. No. Is it stable? No. Yes. No. Octet incomplete है ना? Yes, ma'am. Octet में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 है. So octet incomplete है, but charge नहीं है. This is similar to carbene. It is known as nitrene. I think I've told you about nitrene in the GOC part. Yes, ma'am. Okay, तो ये nitrene बना है. Nitrene is electron deficient because octet is incomplete. Due to the electron deficiency here, the alkyl group will migrate with the electron pair to this electron deficient nitrogen. As the alkyl migration takes place, this carbon becomes electron deficient. Do you agree? Yes, ma'am. Nitrogen will share the electron pair here to form a double bond. So now R is bonded to which atom? Nitrogen. Which now has a double bond with carbon. Correct? Yes, ma'am. This is called as alkyl isocyanate. This alkyl isocyanate then reacts with water. It undergoes hydrolysis to form a primary amine and carbon dioxide. This carbon dioxide gets absorbed by KOH to form what? Ketostate. Yes, and water. So write down the mechanism. मैम अल्काइल आइसोसाइनेट से RnH2 और CO2 में कैसे क्या आप बोल सकते हो? Yeah, I'll show you the mechanism. Just first write down this. ओके मैम.
This is the fourth number or what number for acetamide? 4. हाँ, fourth reaction. कौन से किए थे मैंने? Hydrolysis, dehydration, and reduction. Okay, fine. Did you all finish? Yes, ma'am. Done. Oh. You wanted the hydrolysis of this isocyanate to amine, no? Yes, ma'am. Now this alkyl isocyanate, if the alkyl group is methyl, then it becomes methyl isocyanate, correct? Yes, ma'am. This methyl isocyanate MIC is used for it was responsible for the Bhopal gas tragedy. You have heard about Bhopal gas tragedy? Yes, ma'am. So methyl isocyanate was used for Bhopal gas. It was responsible for Bhopal gas tragedy. If it would have rained that day, it would have converted into amine, which would be less harmful. But it didn't rain. It was unlucky day for those people. In fact, till today, people भोपाल के जो है कुछ ना कुछ DNA में problems आते हैं. You know that, no? This I think has a reaction on the DNA. Okay. You can't hear me? Come on. Yes, ma'am. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I think Vaishnavi can't hear me. That is what she's written. Fine. So just let me explain the hydrolysis of the cyanate, isocyanate to amine. Hydrolysis basic medium में हो रहा है. Basic medium में क्यों हो रहा है? What am I doing? AOH. हाँ. So OH minus कहाँ पर अटैक करेगा? Carbon. और pi bond shift होगा? Am I right? Yes, ma'am. इसका रेजोनेटिंग फॉर्म भी होगा. रेजोनेटिंग फॉर्म में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ. डू यू एग्री? Yes, ma'am. अब नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? Nitrogen. नाइट्रोजन. कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? राइट वाला ज्यादा रिएक्टिव है. हाँ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. वाटर इसको क्या देगा? H plus. H plus. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. फिर से वही होगा. मैम वो इनॉल बना तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं होगा? किधर बना इनॉल? राइट वाला. टॉटोमेरिज्म भी कर सकते हो. टॉटोमेरिज्म से भी कहना है सही, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H इधर आ जाएगा. यस मैम. हाँ, वो भी हो सकता है. It can go through that also. फिर क्या होगा? This will leave out. ये क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड. Am I right? Yes, ma'am. But carbonic acid will undergo dehydration. Why it will undergo dehydration? OH groups. हाँ, तो dehydration होके you will get carbon dioxide. Am I right? Yes, ma'am. और साथ में ये R के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? सॉरी, N के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? Negative. फिर वाटर क्या देगा इसको? H plus. H plus. So this is the mechanism of hydrolysis. It's a huge mechanism. That is why I didn't do.
Fine. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Should we copy it? Not required. Okay, miss. Can I proceed? Yes, ma'am. Page 1 you want? Okay, this is the page 1. Fine. Vineet, what is carbonylamine now? Are you talking about amide? Are you talking about amide? Vineet. Diborane. Yes, this is an acid derivative. Acid derivative, I think diborane can be used as a reducing agent. Okay, diborane can be used as a reducing. Okay, now if I take something like this. Give me the product here. मैम अभी अमाइंस चालू नहीं हुआ ना? नहीं, अभी करूंगी इसके बाद. यहाँ पे मिल गया प्रोडक्ट. Benzenamide. एनिलीन मिलेगा यहाँ पे, बेंजेनामाइन. हाँ उससे बीच का जो भी सी डबल बॉन्ड हुआ है वो निकालना है. हाँ बस खाली वही करना. Okay. This is benzylamine. यहाँ पे क्या मिलेगा? What about this? Cl? You are having what medium? Elimination. Alcoholic KOH. तो elimination होगा. So I'm done with acid derivatives. Now moving on to amines.
Did you all finish writing this? Done, ma'am. वेदांश लास्ट वन में ये अमाइड तो अमाइन हो जाएगा और यहाँ पर एलिमिनेशन होगा ना, क्योंकि हैलोजन है ना यहाँ पर. अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. Okay, have you all finished this? I'm proceeding ahead. Okay. Now give the heading as amines. Amines are derived from ammonia. You know ammonia, if you replace one hydrogen of ammonia by an alkyl group, you get what amine? Primary. Primary. If you replace two hydrogen atoms by alkyl groups, Second. Secondary. if you remove all the three hydrogen and replace it with alkyl groups, you get a Tertiary. tertiary amine. Naming of amines. I'm making a column now for IUPAC and common names. Did you finish writing? Yes, ma'am. 1 minute, please.
Finished? हाँ Did you all finish writing this? 1 minute ma'am please. हो गया मिताली?
Yes, ma'am. Okay. Did you finish? Done, ma'am. Can I proceed? Yes, ma'am.
So start writing the names now.
I'm writing the names, just check.
Did you all get these names? In the second column, in the first one, it is not propan to amine. Arey haan, sorry. Did you all finish these? Yes, ma'am. This is orthotoluidine. Orthotoluidine is also allowed here also. Okay. Meta para isomers I have not written. Naming same ही होगा, खाली यहाँ पे number change होगा और यहाँ पे ये alphabet change होगा. This is orthoanicidine. ये भी allowed है इधर IUPAC से. This is anthranilic acid. This is sulfanilic acid. Ethylene diamine. मैम लेफ्ट कॉलम का जो लास्ट है उसमें ऑर्थो अमीनो एनिलिन नहीं लिख सकते? लेफ्ट का जो लास्ट कॉलम है कहाँ पर? नीचे? वहाँ पे ऑर्थो अमीनो एनिलिन नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं. ओके मैम. मैम जहाँ पे आपने वो 2 एरो ड्रॉ किए हैं उधर ही कॉमन नेम भी IUPAC हो सकता है ना? हाँ हाँ. In fact, for these also, anthranilic, sulfanilic.
हो गया लिख के? Yes, ma'am. मैम लास्ट पेज दिखाना एक सेकेंड. हाँ. मैम यहाँ पे जो लास्ट Done. वाला है कॉमन नेम में आपने क्या लिखा है? इथाइल मिथाइल अमाइन. और मैम उसके बाद वो आपने क्या किया? नहीं नहीं, वो मेरा मार्कर वहां चल नहीं रहा था ना, ओके तो मैम. पहले अमाइन वहां लिख रही थी. डन मैम. मैम इसमें 2 डाल के फिर ब्रैकेट में n इथाइल भी लिख सकते हैं ना? इसमें जो अभी आपने जो लिखा वो 2 फिर ब्रैकेट n इथाइल प्रोपेनामाइन. अच्छा, ये 2 इधर लिखोगे? यस मैम. हाँ, इट इज फाइन. This piperidine word is allowed here also. Piperidine. Again, morpholine is allowed here.
हो गया? Yes, ma'am. सबने लिख लिया? आई एम प्रोसीडिंग. Naming is tough here. IUPSC से ज्यादा में ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा और वो भी बहुत रेयर है. मैम डायरेक्टली कॉमन नेम पूछते हैं क्या? नहीं, ऐसे कॉमन नेम देख के उसका रिएक्शन पूछ सकते हैं. What will happen if cinnamic acid is made to react with this? So you should know what is cinnamic acid, correct? यस मैम. हाइफन नहीं डालना है बीच में, स्पेस रखना है. एन ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइलमाइन. I am also tired writing the names. एन मिथाइल पेपरिडीन यहाँ पर भी अलग. This is known as quinaclidine. Okay, quinaclidine. And ma'am,
एरो मीन्स कॉमन नेम उसका जो है वो एक्सेप्टेड है IUPAC। Okay, this slide all of you have completed. Yes, ma'am. Previous slide ये है। मैं तो नाम लिख के ही थक गई। I don't know. I feel very tired today. I gave many names, no, this time I think. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों है ना। राहिल तुम नाम देख के थक गए, मैं लिख के थक गई। मैम बाईसाइक्लो वाले का नेमिंग बताओ ना एक बार। मैम रिवाइज करो ना ये बाईसाइक्लो का नेमिंग IUPAC। ये होता तो क्या होता? ये ब्रिज हेड है, यस मैम। इसका नेमिंग क्या होता? बाईसाइक्लो। बॉक्स। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, राइट? यस मैम, याद आ गया। ऑक्टेन हो गया। अब Yes, यहाँ ma'am. पर नाइट्रोजन डाल दिया तो अज़ा ग्रुप आ गया। यस मैम। नंबरिंग ब्रिज हेड से ही होता है, राइट? यस मैम। बस 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। पर मैम इसमें ऑक्टेन के सिर्फ सेप्टेन होगा ना, क्योंकि 7 ही कार्बन है। अरे माय गॉड, 1 कंपलसरी है, क्या बोल रहे हो तुम? What if I write N here? यस N मैम। कहाँ पर आ गया फिर? 2 पे। Yes, ma'am. Sorry, ma'am. हाँ, ब्रिज हेड फर्स्ट कार्बन होता है। तुम इसको 1 दे सकते हो या इसको 1 दे सकते हो, दोनों में से एक। मैम वैसे मैं ब्रिज हेड का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैम उसमें 7 ही कार्बन है ना। हाँ, तो भी इसको रिंग का साइज देखते हैं, रिंग के अच्छा, साइज रिंग के। की साइज। हाँ, अब जैसे इसमें अज़ा साइक्लोहेक्सेन लिखा है मैंने, करेक्ट? क्योंकि रिंग में कितने एटम्स हैं? 8। अरे यार, इसमें 6 है। हाँ तो साइक्लोहेक्सेन, अज़ा साइक्लोहेक्सेन 6 एटम्स है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। यस मैम। ठीक है, प्रोसीड करो प्रिपरेशन। Yes. Yes, ma'am. Reduction of nitro compounds. Nitro compound when treated with catalytic hydrogenation, or you can go for metal acid reduction. If R is aliphatic, then you can also go for lithium aluminum hydride. But ये aromatic के लिए नहीं use कर सकते हैं lithium aluminum hydride. All these reduce nitro compounds to primary amine. What is the N factor in this process?
Give me the change in oxidation number. Miss, what was the condition for LiAlH4? Yeah. There you cannot be the R की जगह you cannot have an aromatic ring. Okay, miss. Thank you. मैम इससे सिर्फ 1 डिग्री बन सकता है. हाँ सिर्फ 1 डिग्री. +2 to -3 What to what? +2 to -3 +2 कैसे? My +3. क्या कहा आपने? +3 से -3. हाँ +3 से -3 is correct. So give me the total electrons gained by nitrogen. 6 6. 6, The ma'am. n factor is 6. Okay. n factor +3 कैसे होगा? +3 है ना my dear. वो कोऑर्डिनेट का 2 होता है क्या? इसके लिए क्या होगा पहले तो बताओ. -1 +1 इस सॉरी -1 इस पे और +1 इस पे. यस मैम ऑक्सीजन के वजह से इसके वजह से +2 2 इधर -2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से +2 -2 ना. अच्छा ओके मैम So what is the total? +3 +3. Changing into -3. So 6 electrons gained by nitrogen, correct? Yes, ma'am. N factor is 6. Actually, this happens in stages. I'll just show you the stages which occur here. पहले ये ऑक्सीजन निकल जाता है. ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बनते हैं? H2. Water. आपको ये बनता है. फिर 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं पाई बॉन्ड पर. You get the hydroxylamine. ये नाइट्रोसो है. ये नाइट्रो है. अब फिर और 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं. ये H दोनों H. वेट इसका OH और इसका H लेता है. क्या बनता है? ये Water. OH और इसका H वाटर बनेगा और ये दूसरा H जो बचेगा वो इसके पास जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? Amine. Amine. So these are the different stages of reduction. मैम H+ नहीं है तो नेसेंट हाइड्रोजन OH पे कैसे अटैक कर? क्या है? वो नेसेंट हाइड्रोजन है ना H+ नहीं है ना. हाँ प्लीज रिपीट. सॉरी प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड. मैम वो नेसेंट हाइड्रोजन है ना H+ नहीं है ना. नहीं नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है. अभी ये तो H+ देगा ना. नेसेंट हाइड्रोजन थोड़ी देगा. अच्छा ओके मैम. मैंने खाली बताया कि 2 हाइड्रोजन एवरी स्टेप पे 2 हाइड्रोजन. मतलब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 वो हो गया +1. +1 से होता है -1 और -1 से जाता है -3. ओके मैम. ठीक है समझा? बस आपने हाइड्रोक्सिलामाइन लिखा है, राइट? हाँ हाइड्रोक्सिल. N अल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन.
मैम तो हर जगह वो H+ ही है। हाँ, एसिडिक मीडियम में तो H+ ही आएगा ना पहले। हाँ मैम। And ma'am. Finished, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, you can also bring about partial reduction. Partial reduction में the nitro compound you can change into nitroso also. You can change the nitro compound into hydroxylamine also. और last stage तो aniline के मैंने reagents दे दिए हैं, am I right? Amine ma'am. के reagents दे दिए हैं. So what if I want to stop the reaction here? For that, I need a neutral medium. If I take a neutral medium like iron in presence of water, or you can also take a weakly basic medium like zinc in presence of NaOH. This will reduce nitro to nitroso. If you use a weakly acidic medium like zinc in presence of ammonium chloride, then you get the hydroxylamine. मगर अगर R की जगह यहाँ पर आपने एरोमेटिक रिंग ले लिया, that means नाइट्रोबेंजीन ले लिया और जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, जिंक थोड़ा एक्सेस में देते हैं यहाँ पर, then you get this is only for aromatic, no? You get diphenyl hydrazine. मैम इसके पहले वाले रिएक्शन जो था उसमें हम लोग एरोमेटिक रिंग्स नहीं ले सकते? एरोमेटिक रिंग के साथ ये ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो क्या होगा वो बता रही हूँ. ओके मैम. अगर एरोमेटिक रिंग पे तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, then what I'll get, I'm writing it here. मैम ये क्या लिखा है, डाइफिनाइल हाइड्रोजीन है क्या? हाँ, डाइफिनाइल ये है हाइड्रोजन. ना मैम? हाँ, आर के बाद ए है ना मैम? रुको मैं फिर से लिखती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग है ना बहुत गंदी हो गई है. नहीं मैम, समझ रहा था. नहीं, पर ग्लास पे लिख लिख के ना इट इज बिकमिंग, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू यूज द ब्लैक बोर्ड आगे से. डाइफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या कर रही थी? हाँ, इधर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो यू गेट दिस.
You get isobenzene. लिखा मैम कैसे हुआ वो? क्या? मैम आइसोबेंजीन। एजोबेंजीन, रुको, इसमें दो चीजें बनती है, एनिलीन मैम ये बनता कॉपी है। करना है। हाँ तो, और ये बनता है, रुको, नाइट्रोसो। इनका मिक्सचर बनता है जो कंबाइन हो जाते हैं, और क्या होता है? आइसोबेंजीन, ओके मैम। डिहाइड्रेशन होता है, ये वाटर निकलता है, एंड यू गेट द हाँ मैम। डायजो। ठीक है। लिखा? Well, ma'am. अगर नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, then you get NaOH. But if the electrolytic reduction is carried out in strongly acidic medium, then you get para-aminophenol. इसमें पहले ये बनता है, फिर एसिड की वजह से इसका रीअरेंजमेंट होकर ये OH इधर माइग्रेट करता है। मैम All of you finished? Yes, ma'am. Okay. So first method, I think you've understood. Next method.
by reduction of cyanides. You want me to leave you early? Every lecture you want me to leave you early, no? Correct? Tired means I have one more lecture after this. Ma'am, we also have one more lecture. We have one more lecture at 4 o'clock also. My God, you're a very hardworking. Yes, Yes, ma'am. तो पढ़ते कब हो वैसे? ज्यादा नहीं पढ़ते मैम तो फिर. ज्यादा नहीं पढ़ते. यहाँ पे क्या होगा? RCH2NH2. Yes. If the same reduction is carried out using sodium in presence of alcohol, sodium and alcohol is also a reducing agent. हम NaBH4 नहीं यूज कर सकते. NaBH4 यहाँ नहीं चलता. Then also you get a primary amine, but this reduction is known as Mendius reduction. Mendius reduction. So reduction of cyanide using sodium and alcohol is known as Mendius reduction. Can I prepare a secondary amine in this reaction? No miss. No, ma'am. What if I use a isocyanide? Isocyanide यूज किया तो क्या होगा? मिस हाँ अभी बन सकता है. मैम इसकी मैकेनिज्म आप करोगे क्या? इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा ना खाली. H इधर फिर पाई बॉन्ड दूसरा भी ब्रेक होगा. H इधर. हाँ मैम, बट वो दूसरा और तीसरा वाला. हाइड्राइड के साथ ये इधर H माइनस अटैक करेगा. पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा. हाँ मैम, तो N पे व्हाट चार्ज? नेगेटिव. तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा. H आ जाएगा ना उसमें. हाँ H, सॉरी. तो ये अमाइन हो जाएगा. ये CH2 हो जाएगा. वो NH2 हो जाएगा. दो बार होगा ना क्योंकि दो पाई बॉन्ड. यस मैम. सोडियम और अल्कोहल क्या करता है? Sodium will displace what? The acidic hydrogen. Am I right? Yes, ma'am. यस मैम. So I'll get sodium salt of alcohol and hydrogen. सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को मैम. H प्लस को ना. हाँ, H प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एटम. हाँ, फिर हाइड्रोजन एटम रिड्यूस करेगा पाई बॉन्ड्स. ओके मैम. लास्ट वाला भी सेम है, सिर्फ एनआरसी इंटरचेंज किए हैं ना. हाँ हाँ. ओके मैम. छह सात बज जाते हैं पढ़ने के लिए. हाँ तो फिर ठीक है ना. 6-7 बजे अगर पढ़ने बैठते हो तो कौन सी चीज दिमाग में जा रही होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड. 7 बजे तक तो कॉलेज होता है. You all get up early वही morning मैम. ना because morning you all have lectures. मैम 7:30 को चालू होता है सब. हाँ तो that means your mind is not getting rest. Or mind Yes, is not ma'am. getting rest means what you must be studying. इसीलिए 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट कर लेना चाहिए था. बैकलॉग नहीं रखना चाहिए था. Am I right? Yes, ma'am. हाँ. अब हम बोलते थे तो आपको गुस्सा आता था.
करेक्ट? मैम अभी तो बैकलॉग शुरू भी नहीं किया है करना। तब एटॉमिक मैम बहुत है बैकलॉग हम अभी हमारा। 12th का करेंट चैप्टर्स ही कर रहे हैं। मैम 12th में भी थोड़ा बैकलॉग है और 11th में हाँ भी तो। बस एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया कितना, 2 महीने एक चैप्टर कर रहे थे, करेक्ट? हाँ मैम, मोल Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट एटॉमिक 3-4 महीने किया है। हाँ, अब इधर एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। यस बस हाँ वही मैं। हाँ, you are not in a shock state? We are, but we try not to think about it. Ma'am, we have come to the stage of acceptance now. Poor thing. Oh God. Ma'am, you really seem to be enjoying the pain of us. But I had warned you all. Why you all didn't listen that time? मैम वी लिसन बट देन टू इट डजंट हैपन। हम तभी लगा था कि टाइम मिल जाएगा। हाँ We मैम, tried सबने our बोला था best कि at एंड में that टाइम मिलता moment. है। किसने कहा था ये तुमको किसने? मैम सारे सर और टीचर ने कहा था कि एंड में 1-2 महीना मिलता है बैकलॉग कवर मैंने करने में। कहा था क्लियरली, सारा सिलेबस जो है पहले कंप्लीट कर लो 11th का। मैंने बहुत पहले बोला था, बहुत बहुत पहले। और मैम 11th बैकलॉग में हम लोग मत 10th रखो, के मैंने मूड में बोला थे। था 12th में कुछ समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये भी मैंने बोला था कि 12th में समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैम हाँ, अभी के लिए सब समझ जा रहे हैं, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। समझ जा रहा है मतलब अभी व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ, तुम लोग को कुछ समझ रहा है? Are you able to manage a timetable, proper timetable? No, and know ma'am, according no. to No, that? ma'am, not at Yes, all. It ma'am. is all No timetable. Yeah, I know that because this happens in 12th. You have your journal completion, you'll have your other college things also to be completed. Am I right? Yes, ma'am. So giving time for this JE studies, it's going to be difficult. I knew that right from beginning. I'm teaching since 28 years. I know what problems the students face. तो 11th का 11th में complete कर लो। 12th का फिर जैसे रेगुलरली जो चल रहा है, इमीडिएटली बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, बिकॉज आई थिंक दिसंबर यू ऑल विल बी कंप्लीटली पैक्ड। यू ऑल हैव टू सबमिट योर जर्नल्स, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ आएगा दिसंबर में। मैम अब ये वीक में सब सबमिट करने को आने वाला है। हाँ, तो ये देते 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 दिसंबर आ ही जाएगा। एम आई राइट? उस 12th का जो थोड़ा बैकलॉग है उसके लिए टाइम मिलेगा। टाइम अभी आई थिंक आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, सो इट इज यू आर लकी ना फॉर दैट। मैम मैम लकी नहीं बहुत होना अभी हो रहा चाहिए। है कुछ। मतलब फरवरी के पहले तो नहीं आएगा ना आपका एग्जाम? मैम फेब के 3rd वरना 4th वीक में JEE होगा। फेब में है ना मेंस? हाँ, फेब में आएगा मेंस, वरना तो जैन में होता है ना एवरी ईयर। वो तो कोविड की वजह से पोस्टपोन होके इट इज गॉन टू फेब, वरना तो जैन में होता है ना एवरी ईयर। फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन जनवरी, so you all are lucky, you all will have that one extra month. That's very nice, Shivani. If you finished all your backlog, it's very wonderful. Okay, so you should backlog जो थे फिलहाल अभी concentrate on the current topics and finish it. Okay, पोर्शन वैसे रेगुलरली मतलब हमेशा नवंबर के आसपास ही होता है पोर्शन कंप्लीट, तो वैसे वी आर नॉट वेरी लेट। आई थिंक नवंबर एंड आई विल कंप्लीट योर सिलेबस। वैसे नवंबर 15 तक होता है, अभी नवंबर एंड में कंप्लीट हो रहा है। नो लेक्चर इज नॉट ओवर। लेकिन इनऑर्गेनिक का बहुत बाकी है ना। किसका? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी मेरा ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है। फिजिकल आई थिंक मस्ट बी डन ऑलमोस्ट। नेक्स्ट लेक्चर होगा। एक लेक्चर मैम। नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसके बाद सारे लेक्चर्स विल बी यूजिंग फॉर इनऑर्गेनिक। मिस पोर्शन के बाद क्लासेस नहीं होगे? नहीं, पोर्शन के बाद क्रैश कोर्स चालू होगा। हम उसमें बराबर रिवीजन करवाते हैं सब। रिवीजन मतलब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा और जो उस पे डिस्कशंस होंगे। हम आप कैसे करवाओगे रिवीजन? जैसे फर्स्ट आपका C1 जो आएगा, C1 वी हैव डिवाइडेड इनटू आई थिंक 12 और आई थिंक 15 लेक्चर्स और समथिंग क्रैश कोर्स के। तो C1 जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा एंड आई थिंक मोल कांसेप्ट।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट साथ में सारा लिया जाएगा, उसके सारे डाउट्स, उसका सारा रिवीजन करवाया जाएगा फर्स्ट लेक्चर में, समझा? Yes, ma'am. फिर सेकंड लेक्चर विल बी पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग, ऐसा कुछ होगा। तो मैम बॉन्डिंग और इसका ओरिएंटेशन होगा क्या? ओरिएंटेशन नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और कुछ कंसेप्ट्स अगर आपके मतलब नहीं समझे हैं, we'll revise all those concepts. So it will be like सारा सब्जेक्ट दोबारा, मतलब सारा हर एक सब्जेक्ट रिवाइज किया जाएगा चैप्टर वाइज, ओके? बट इतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज we'll get only one lecture for that. तो वन लेक्चर में आप सोच सकते हो कि कितना रिवीजन हो सकता है. So don't be completely dependent on that crash course because you have to prepare also. अभी आपका I think December 12th you have a complete syllabus test, ना? Yes, on 11. December 11. हाँ, December 11th. तो complete syllabus means now you are supposed to supposed to be preparing the complete syllabus. अभी जैसे आपका TWT आ रहा है, जैसे TWT आ रहा है ना अभी आपका, Yes, ma'am. तो people have told me कि TWT आ रहा है, तो you please postpone, ask them to postpone the complete syllabus test somewhere after 15 days. But that is not correct, ना? You start studying for the entire syllabus. बीच में एक दिन लेके तुम्हारा जो TWT आ रहा है वो कंप्लीट करो, उसको पढ़ो वापस से। लेकिन सारे करंट चैप्टर एक दिन में कैसे करने का? हाँ तो 2 दिन ले लो। अगर आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये टॉपिक्स भी आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे मैम। तो अगर पूरा सिलेबस जब पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो TWTs आएंगे उसमें जस्ट यू हैव टू जस्ट पिक आउट दोस टॉपिक्स एंड जस्ट रिवाइज देम, करेक्ट? Yes, हम कैसे रिवाइज करें? अभी रिवीजन कैसे करोगे? पहले तो अभी आई डोंट इवन नो कि किसके कितने बैकलॉग भी है ना। रिवीजन तब होता है जब बैकलॉग नहीं होता है, उसको रिवीजन बोलते हैं। पर आप लोगों के बैकलॉग भी तो है इतने सारे। अभी फिलहाल जो अभी सिलेबस का जो आएगा, जो कंप्लीट सिलेबस, रिमेम्बर 12th का सिलेबस उसमें 60% होगा, 11th का सिर्फ 40% होगा, 40 से कम होगा। तो 11th का आई थिंक स्टार्टिंग के टॉपिक्स अगर आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हो 15-20 मिनट में, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कंसेप्ट है, आई डोंट थिंक यू नीड प्रैक्टिस फॉर दोस क्वेश्चंस, एम आई राइट? यू विल जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलेज आपको आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने कितनी बार दिया है अभी एग्जाम? बहुत बार दिया है ना। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट आप दे चुके हो पहले, उसका एक फॉर्मूला शीट आपने बनाया है या नहीं बनाया है? नहीं बनाया मैम। कुछ चैप्टर्स के लिए, कुछ के लिए नहीं है। Okay, do you have any textbook, any handbook for physical chemistry? No. हैंडबुक मतलब? Reference book, जैसे MS चौहान you use for inorganic, Yes, for ma'am. organic. So have you हाँ, have any? नरेंद्र अवस्थी। हाँ, नरेंद्र अवस्थी में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का जब देखोगे उसमें चैप्टर के बिगिनिंग में सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। You don't need to make formulas, you have every, नरेंद्र अवस्थी में हर एक चैप्टर में चैप्टर के पहले 2 पेजेस इज ऑल फॉर्मूलेज। तो वो फॉर्मूलेज आप याद करना चालू कर दो। सी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो वो फॉर्मूलेज यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, दैट्स ऑल। फॉर्मूला रिवीजन विल नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर फॉर वन चैप्टर। बट the thing is that you should have solved the module for that particular chapter. उसके बाद खाली फॉर्मूलेज कर लोगे तो काफी है, बट द थिंग इज वो चैप्टर तुम्हारा मॉड्यूल से पूरा सॉल्व होना चाहिए पहले। So that is also a question mark. Have you solved the modules for the chapters? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so if that is Yes, done, then ma'am. well and good ना। So फिर एक बार फॉर्मूलेज पढ़ लो बस। So do we need to go through the solved questions? If you have time. In short, नहीं। नहीं, बिकॉज अभी फिलहाल तो जो सॉल्व करना है वो करो पहले, ठीक है? यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। और इफ यू अगर अटक रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो थ्रू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। मैम बुकलेट में जो नोट्स दिए और थ्योरी दिया है वो रीड कर सकते हैं क्या? Not required except for inorganic, if you want you can. Organic you don't need. Organic my notes are sufficient.
So don't मैम आपने थोड़े दिन पहले बोला था ना कि एंड में लाइक सारे अदर क्लासेस का भी होगा साथ में टेस्ट मेजर टेस्ट हाँ टेस्ट सीरीज ना, तो ये अभी आपका जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट आ रहा है ना, उसके हाँ, बाद मतलब। आपका AITS चालू होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज. So that is the time where you can actually invest that time for preparing well, because your entire subject, each subject will be divided into 3 parts. जैसे chemistry will be divided into 3 parts. You'll have physical chemistry अलग से, organic अलग से और inorganic अलग से, और इनके बीच में 15-15 दिन का गैप होगा. तो जब पहला AITS चालू होगा, your first AITS will be only what you say physical chemistry. तो physical chemistry यहाँ पर आप पूरा रिवाइज कर सकते हो 11th और 12th का, बिकॉज इसके 15 दिन के बाद, आई डोंट थिंक इस बार 15 दिन होगा बिकॉज उतना टाइम नहीं है. AITS वैसे अक्टूबर में चालू हो रहा है, नाउ दे वांट टू स्टार्ट इन दिसंबर, सो आई थिंक दे विल जस्ट गिव वन वीक गैप. 1 वीक के बाद यू विल हैव ऑर्गेनिक का पूरा टेस्ट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा. आफ्टर दैट अगेन आफ्टर 1 वीक यू विल हैव AITS 3. AITS 3 you will have entire inorganic chemistry. So these will be conducted in a week's time, like एक week के बाद दूसरा होगा, उसके एक week के बाद तीसरा होगा. So these AITS, the part test, these are known as the part test. These you can actually use to revise all your topics, because 3 part में अगर divide हो गया, 3 part में chemistry divide होगा, 3 part में physics divide होगा और 3 part में maths. So now you can concentrate and do it. Okay. बस इसी दौरान आपका हो सकता है कुछ होगा तो. So you can plan मैम वो accordingly. लाइक 15 दिसंबर के बाद से होगा ना ये? Yeah, ये तुम्हारा ये कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है उसके बाद से होगा ये. मैम ये इनमें मैथ्स और फिजिक्स भी आएगा ना, उनका भी डिवीजन? हाँ, मैथ्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. जैसे मैम तो फर्स्ट एक पार्ट वीक आई में थिंक विल बी योर क्वाड्रेटिक और ये सब आता है ना, शेट्रिको. सब बोल सकते हो मतलब डिविजन्स क्या फिजिक्स और मैथ्स का? क्या सब मैथ्स और फिजिक्स का भी डिवीजन बोल सकते हो. हाँ, फिजिक्स में जैसे फर्स्ट पार्ट विल बी ऑल काइनेमैटिक्स, फर्स्ट पेपर विल बी ऑल काइनेमैटिक्स. फिर सेकंड पार्ट विल बी, सेकंड पार्ट वो इलेक्ट्रो का पार्ट है ना शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब आता है ना. Yes, sir. हाँ, तो वो आएगा सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में वो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आता है उसमें. तो फिजिक्स में भी 3 अलग हिस्से हो जाएंगे. मैथ्स में भी वैसे ही होता है. मैथ्स में फर्स्ट पार्ट विल बी दैट क्वाड्रेटिक और ट्रिगो वगैरह आएगा. फिर सेकंड पार्ट विल बी ऑल दैट, मुझे याद नहीं आ रहा है. और थर्ड पार्ट वो तुम्हारा वो जो लास्ट का पार्ट है ना, इंटीग्रेशन और ये सब जो कैलकुलस. कैलकुलस. हाँ, थर्ड पेपर विल बी कैलकुलस फॉर मैथ्स. Okay, so these part test will be definitely helpful for you, because जब syllabus 3 हिस्सों में divide किया गया है हर एक subject का, it becomes easier for you to cope up. So you can make extensive use of this. Okay. मैम फिर 9 AITS होते? अभी इस साल नहीं होंगे, I don't think. 3 ही उतना होंगे ना time मैम? एक ये होंगे, ये AITS 3 होने के बाद AITS 4 से जो चालू होगा वो complete syllabus होगा ये. फिर यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस लिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का. अब ये कितने AITS होंगे वो मुझे नहीं पता. दैट विल डिपेंड ऑन योर एग्जाम्स. ओके, कि आपके एग्जाम्स कब डिसाइड किए गए हैं जो JEE मेंस है. बट आई विल टेल यू, यू कैन यूज मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम स्टडी इस दौरान होगा, ये जब पार्ट टेस्ट होगा. इसलिए एटलीस्ट मॉड्यूल इसके पहले सॉल्व करके रख लो. मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा तो रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, चलो. नाउ आई विल एंड माय क्लास. आई हैव माय सेकंड एंड थर्ड क्लास कमिंग अप. नहीं, प्रीवियस चैप्टर्स फिलहाल अभी छोड़ दो सर. यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व द करंट टॉपिक्स. करंट टॉपिक्स को सॉल्व करके खत्म करो फटाफट. ठीक है, हाँ, रिवीजन के वक्त. यस, ओके, फाइन. चलो, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ. बाय ऑल ऑफ यू. Thank you, बाय ma'am. मैम. Bye, miss. Thank you.